Good morning, students. Class 7th, Subject English Reader, Lesson 16, The Wind on Haunted Hill. Students, now we are going to start our remaining chapter. Wild flowers bloomed on the crumbling walls of the ruins, and a wild plum tree grew straight out of the floor of what had once been a hall. It was covered with soft white blossoms, lizards scuttled, and over the stones while a whistling thrush, its deep purple plumage glistening in the sunshine, sat on the window sill, sang its heart out. जो खंडर की दीवारों पर जंगली फूल खिल गए थे और जंगली बेर का पेड़ सीधे फर्श से बाहर बढ़ रहा था, दीवारों को तोड़ता हुआ ऊपर की तरफ निकला हुआ था। छत सफ़ेद और नरम फूलों के साथ ढकी हुई थी, छिपकलियाँ पत्थर के ऊपर चिपकी हुई थी। वहाँ पर एक नीले मखमली रंग की चिड़िया सीटी जैसी आवाज़ और धूप की रोशनी में निकल रही थी। एक खिड़की में बैठी हुई थी, संगीत की आवाज़ें आ रही थी। उषा sang too, and she skipped and lightly along the path which dipped steeply down to the valley and led to the little town within quaint bazaar. उषा भी साथ साथ गा रही थी। वह रास्ते में साथ साथ जल्दी जल्दी चल रही थी। जो रास्ता नीचे की तरफ घाटी में जा रहा था, ये रास्ता नीचे कस्बे की तरफ बाजार में जा रहा था। Moving leisurely, Usha bought spices, sugar and matches. With 2 rupees she had saved from her pocket money, she chose a necklace of amber-colored beads for herself and some marbles for Suresh. Then she had her mother's slippers repaired at a cobbler shop. जो उषा ने बगैर देर के जल्दी से मसाले, चीनी और माचिस खरीद ली और जो 2 रुपये बचे पॉकेट मनी में से बचाकर उन पैसों से उषा ने अपने गले का हार और पत्थर के टुकड़े सुरेश के लिए खरीदे। फिर उसने मोची के पास अपनी मम्मी की चप्पलों को ठीक करवाया। Finally, Usha went to visit Aunt Lakshmi and her flat above the shop. They were talking and drinking cups of hot and sweet tea. When Usha realized that dark clouds had gathered over the mountain, she quickly picked up her things and said goodbye to her aunt and set out for the village. उषा ने क्या किया? उषा बगैर देर के जल्दी से वो सब कुछ ले लिया था। वो अंत में उषा अपनी आंटी लक्ष्मी के घर पर उन दुकानों के ऊपर गई। वे दोनों बातें कर रही थी और चाय पी रही थी। जब चाय पीते पीते उषा ने ध्यान दिया कि पहाड़ों के ऊपर बादल इकट्ठा हो रहे हैं। जल्दी से अपने सामान को उठाया और आंटी को अलविदा कहकर वह गाँव से निकल पड़ी। Strangely, the wind had dropped. The trees were still, the cricket silent. The crow flew around in circles, then settled in on oak tree. अचानक हवा रुक गई, पेड़ हिलना बंद हो गए, पक्षियों का चहचहाना बंद हो गया, एक सर्कल में घूम रहे थे। ओक ट्री के ऊपर सारे इकट्ठे बैठ गए थे। आई मस्ट गेट होम बिफोर डार्क, थॉट उषा हरिंग अलोंग द पाथ। मुझे अंधेरा होने से पहले घर पहुंचना चाहिए, उषा ने सोचा। वह जल्दी जल्दी चलने लग गई। बट द स्काई हैड डार्केंड एंड ए डीप रंबल echoed over the hills. Usha felt the first heavy drop of rain hit the chick holding the shopping bag close to her body. She quickened her pace until she was almost running. The raindrops were coming down faster now, cold, stinging pellets of rain. A flash of lightning sharply outlined and the ruins on the hill. Then all was dark again. Night had fallen. परंतु आसमान में जो एकदम अंधेरा हो गया, पहाड़ों के ऊपर गड़गड़ाहट होनी शुरू हो गई। उषा ने महसूस किया कि बारिश की पहली बूंदें उसके गालों पर लगी है। सामान का थैला जोर से पकड़कर अपने शरीर पर लगाकर वह तेज तेज कदमों से चलने लगी, भागती हुई जैसे जोर जोर से भाग रही थी। बारिश तेज हो गई थी। तेज बारिश में ओले भी पड़ रहे थे और वो चोट ना पहुँचा दे। बिजली चमकनी शुरू हो गई। तेज गड़गड़ाहट के साथ पहाड़ों के पास उस खंडर के ऊपर बिजली चमक रही थी। हर जगह अंधेरा हो गया और रात हो गई थी। I will have to shelter in the ruins. Usha thought the began to run. Suddenly the wind sprang up again, but she did not have to fight it. It was behind her now, helping her along up the steep path and onto the brow of the hill. There was another flash of lightning, followed by the peal of thunder. The ruins loomed before her, grim and forbidding. अब क्या था? उषा ने सोचा इस खंडर से में थोड़ी देर रुकना चाहिए।
उषा ने सोचकर भागना शुरू कर दिया। अचानक से हवा तेजी से चलने लगी, लेकिन वह इस हवा का सामना नहीं कर सकती थी। वह दीवार के पीछे छुप गई और वह उस खंडर में खड़ी हो गई। वहाँ फिर चमक रही थी बिजली जोर से, तेज आवाज़ के साथ। वो डर रही थी, अकेले में उदास, कहीं तुझे बड़ा नुकसान ना हो जाए। उषा रिमेंबर, क्या किया उषा ने? रिमेंबर्ड part of an old roof that would give some shelter. It would be better than trying to go on in the dark with the howling wind. The might stray of path fall over the edge of the cliff. उषा पुरानी जगह को याद करी थी जिससे उसे रहने के लिए स्थान दिया था। यह उससे अच्छा था कि वो जाने की कोशिश कर रही थी। उस तेज डरावनी हवाओं में चलने की बजाय उसे खंडर में रुकना अच्छा था। Hoo, howled the wind. Usha saw the wild plum tree swaying in following foliage thrashing against the ground. She found her way into the ruins, helped by the constant flicker of lightning. Usha placed her hands against a stone wall and moved sideways, hoping to reach the shelter corner. Suddenly her hand touched something soft and furry, and she gave a startled cry. Her cry was answered by another half snarl, half screech, as something leaped away in the darkness. उषा ने हवा की जोर 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 से आवाज़ आ रही थी। उषा ने उन जंगली बड़े पेड़ों को देख रही थी। इतनी तेज से हवा चल रही थी वो उस मैदान में नुकसान ना पहुंचा दे। उसने उस तेज लाइटनिंग से ही खंडर के अंदर उस रास्ते को ढूंढा। उषा पत्थर को पकड़ते हुए एक तरफ चलते उस खंडर में पहुंच गई थी। वह कोशिश कर रही थी कि एक कोने में सुरक्षित ढंग से रुकने के लिए, ताकि वो सुरक्षित ढंग से वहां पर चली जाए। अचानक उसके हाथ में एक नरम चीज पर लगा। वह जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चिल्लाहट से दूसरी तरफ से भी जोर से आवाज़ आई, ऐसी आवाज़ जैसे दूसरी तरफ से रेंगने वाली आवाज़ हो, जैसे कि अंधेरे में कोई चीज़ खड़ी हो। With a sigh of relief, Usha realized that it was the cat that lived in the ruins. For a moment she had been frightened, but now she moved quickly along the wall until she heard the rain drumming on a remnant tin roof. Crouched in a corner, she found some shelter, but the tin sheet groaned. अब क्या था? उसे आराम की सांस ली जब उसने बिजली की रोशनी में देखा, जब एक बिल्ली जो उस खंडर में रहती है, अब जल्दी से वो एक दीवार के साथ खड़ी हो गई। अब उस हिस्से में खड़ी होगी जो उस भाग में खंडर का ठीक था। बाकी हिस्सा खत्म हो गया था। वह एक कॉर्नर में बैठ गई थी जहाँ उसे सुरक्षित जगह मिल गई थी। क्लैटर्ड एज इफ इट वुड सेल अवे एनी मूवमेंट, ताकि वो आवाज़ें जो कर रही थी, ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। जो वो टीन की चद्दर थी वो आवाज़ें कर रही थी, ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे कोई नुकसान ना हो जाए। उषा रिमेंबर्ड दैट अक्रॉस दिस एम्प्टी रूम स्टूड ऑन ओल्ड फायरप्लेस. Perhaps it would be drier there under the blocked chimney, but she would not attempt to find it just now. She might lose her way altogether. आगे क्या था? जो उषा ने याद किया कि जहाँ वह खड़ी थी उसने एक आग जलाने वाली चिमनी थी। जो चिमनी थी यह एक बंद चिमनी के नीचे की जगह थी। अब उसने उसको ढूंढने की कोई कोशिश नहीं की क्योंकि वह अपनी जगह पर भटक चुकी थी। Her clothes were soaked and water streamed down from her hair, forming a puddle at her feet. She thought she heard a faint cry, the cat again or an owl. Then the storm blotted out all other sounds. उसके कपड़े गीले हो गए थे और वहाँ पर वो खड़ी थी। उसे उषा जो है वहाँ पर उषा ने याद किया, वहाँ खड़ी थी, उसे आग जलाने की चिमनी लगी हुई थी। उसके कपड़े गीले हो गए थे, उसके बालों से पानी टपक रहा था और उसके पैरों पर गिर रहा था। उसने सुना कि डरावनी आवाज़ें जैसे बिल्ली या उल्लू की है, दोनों किसी न किसी की आवाज़ सुनी। तूफान बाहर अलग अलग आवाज़ें कर रहा था। There had been no time to think of the ghost, but now that she was settled in one place, Usha remembered grandfather's story about the lightning blasted ruins. She hoped and prayed that the lightning would not strike her. अब वहाँ पर भूतों के बारे में सोचने का कोई समय नहीं था, परंतु वह एक जगह पर बैठ गई। उषा ने दादाजी की कहानी को याद किया। उस पुराने खंडर के ऊपर बिजली गिरने की कहानी जो थी, उसने दादाजी की उस कहानी को याद किया।
और वह उम्मीद थी कि वह प्रार्थना करी थी उसके ऊपर बिजली नहीं गिरेगी। थंडर ब्लूम्ड ओवर द हिल्स एंड द लाइटनिंग केम क्विकर नाउ देन देयर वाज a bigger flash for a moment and entire ruin was lit up. A streak of blue sizzled along the floor of the building. Usha was staring straight ahead, and as was the opposite wall lit up. She saw crouching in front of the unused fireplace two small figure children. अब क्या था, तूफान पहाड़ी के ऊपर गरज रहा था। बिजली की भी तेज़ी से चमक रही थी। वहाँ पर ज़ोरदार चमक हुई। कुछ समय के लिए सब कुछ शांत हो गया था। कुछ समय के लिए ऐसा हो गया था कि खंडर में एक नीले रंग की लाइन फर्श के ऊपर दिखी। उषा एकदम सीधी खड़ी थी। उसे खंडर की दूसरी तरफ, दीवार की तरफ जहाँ पर आग की भट्टी थी, जो दो बच्चे दिखाई दिए। द घोस्टली फिगर सीम्स टू लुक अप एंड स्टेयर बैक एट उषा एंड देन एवरीथिंग वाज डार्क अगेन। जो उस भूतिया बच्चे जो है उषा की तरफ से बैक से दिखाई दे रहे थे, उन्होंने उस उषा की तरफ से बैक की हुई थी। उषा जो खड़ी थी सीधी, उसके उनकी बैक थी और एकदम फिर से अंधेरा हो गया। उषा की डर के कारण धड़कन बगी और उसे संदेह नहीं था कि दूसरी तरफ क्या है। वहाँ पर दो भूत के बच्चे हैं। अब वह 1 मिनट के लिए ज़्यादा उस खंडर में रुकना नहीं चाहती थी। She ran toward the big gap. ये Usha heart was in mouth. She had been without doubt two ghosts on the other side of the room. दो बच्चे जो मैंने बताए हैं खड़े थे। She ran toward the big gap in the wall through the which she had entered. She was halfway across the open space when someone fell against the Usha, stumbled, got up and again bumped into something. She gave a frightened scream. Someone else screamed and then अब क्या था, वह एकदम जल्दी उस दीवार की सहायता से उस खंडर से बाहर की तरफ भागी जिसमें वह अंदर गई हुई थी। अभी वह कुछ दूर ही गई थी कि उस खाली खुली जगह में उसे कुछ अलग और कुछ और महसूस किया। दूसरी तरफ से उषा को क्या किया, उषा ठोकर खाकर क्या होगी, स्टबल्ड जो है एकदम गिर गई। वो ठोकर खाकर गिर गई और दोबारा गिर गई और उसे किसी चीज़ से टकराई। वह डर के कारण जोर से चिल्लाई। दूर से तरफ से देयर वॉज a shout, a boy shout, and उषा इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज्ड द वॉइस। अचानक से उषा ठोकर खाकर जब गिर गई थी, उठ गई थी, दोबारा किसी चीज़ से टकराई। वह डर के कारण जोर से चिल्लाई। डर के कारण जोर से चिल्लाने लगी तो दूसरी तरफ से भी चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, जैसे किसी लड़के के चिल्लाने की आवाज़ हो। उषा ने एकदम आवाज़ को पहचान लिया। रिकॉग्नाइज हर वॉइस। सुरेश, उषा, बिनिया ये तीनों इकट्ठे हो गए और वे एक दूसरे के दे फेल इनटू ईच अदर आर्म्स सो सरप्राइज्ड एंड रिलीव्ड दैट ऑल they could do was laugh and giggle and repeat each other's names. अब वो क्या थे, वो हंस रहे थे। वे जो लगे थे हैरान हो गए थे, वे शांत होकर हंसने लगे और एक दूसरे के नाम से पुकारने लगे। देन उषा सेड, आई थॉट यू वर घोस्ट। उषा ने कहा, मैं सोच रही थी कि तुम भूत हो। वी थॉट यू वर ए घोस्ट एंड सेड सुरेश। हम सोच रहे थे कि तुम एक भूत हो, सुरेश ने कहा। कम बैक अंडर द रूफ सेड उषा। छत के नीचे आ जाओ, उषा ने कहा। दे हडल्ड टुगेदर इन द कॉर्नर चैटरिंग एंड एक्साइटमेंट एंड रिलीफ। वे सारे कॉर्नर में इकट्ठे हो गए और रिलीफ बिना डर के एक दूसरे से बातें करने लगे। व्हेन इट ग्रू डार्क वी केम लुकिंग फॉर यू सैड बिनिया एंड देन द स्टॉर्म ब्रोक। जब वो ज़्यादा अंधेरा हो गया तो हम तुम्हें देखने आ गए, बीनिया ने कहा। तूफान ख़त्म हो गया था। शैल वी रन बैक टुगेदर आस्क्ड उषा। आई डोंट वांट टू स्टे हेयर एनी लॉन्गर। हम इकट्ठे वापस जाना चाहिए, उषा ने कहा। ज़्यादा लंबा समय नहीं रुकना चाहिए। वी विल हैव टू वेट टिल मॉर्निंग सैड सुरेश, आई एम सो हंग्री। हमें कुछ इंतज़ार करना चाहिए, बिनिया ने कहा। ये रास्ता टूटा हुआ है और बारिश में वो सुरक्षित नहीं है। वी विल वॉश, वी हैव टू वी मॉर्निंग, सुरेश ने कहा। भी बारिश में सुरक्षित नहीं। वी विल वेट, हमें सुबह तक इंतज़ार करेंगे, सुरेश ने कहा। मैं बहुत भूखा हूँ। द स्टॉर्म कंटिन्यूड बट दे वर नॉट अफ्रेड नाउ। दे गेव ईच अदर वार्मथ एंड कॉन्फिडेंस। इवन द रुमाइंस डिड नॉट
सीम्स टू फॉरवर्डिंग। तूफान लगातार चल रहा था लेकिन अब उनको डर नहीं लग रहा था। वे एक दूसरे को साहस का एहसास दिला रहे थे, बहादुरी का एहसास दिला रहे थे। अब उन्होंने खंडर डरावना नहीं लग रहा था। आफ्टर एन ओवर द रेन स्टॉप्ड एंड द थंडर ग्रू मोर डिस्टेंस। एक घंटे के बाद तूफान रुक गया था, बिजली भी देर देर से चमकने लगी थी। नेक्स्ट है टुवार्ड्स डाउन द विस्लिंग thrush began to sing. Its sweet broken notes flooded the ruins with music. As the sky grew lighter, they saw that the plum tree, upright again, thought it had lost all its blossom. Let's go, Usha. आगे क्या था? बच्चे गाने के साथ साथ सीटियां भी बजा रहे थे। वे खंडर के अंदर एक मस्ती करने लगे और संगीत का आनंद क्या था? संगीत का आनंद लेने लग गए। जैसे ही आसमान में रोशनी शुरू हुई, उन्होंने जैसे एक वो पाम ट्री को दोबारा से सीधे खड़े दिखाई देने लगे। यद्यपि वो सारे फूल पीले ख़त्म हो चुके थे क्योंकि तूफान आया था। पहले हवा में जो पेड़ हैं इधर उधर घूम रहे थे, तो वो सारे पेड़ जो सीधे नज़र आ रहे थे, और फूल जो हैं ओले की वजह से, बारिश की वजह से सारे ख़त्म हो चुके थे। उषा ने कहा, लेट्स गो सैड उषा। उषा ने कहा, आओ चलते हैं। Outside the ruins, walking along the brow of the hill, they watched the sky grow pink. When they were some distance away, Usha looked back and said, "Can you see something behind the wall? It's like a hand waving." खंडर के बाहर चलते हैं, पहाड़ी के साथ साथ रास्ते में से चलते हैं। वो देख रहे हैं आसमान गुलाबी रंग से खिल रहा था। जब कुछ दूर ही गए थे, उषा ने पीछे देखा और क्या कहा कि तुम दीवार के पीछे कुछ देख सकते हो? यह ऐसा ही है जैसे कोई हमें हाथ हिला रहा हो, जैसे कि हिला रहा हो। इट्स जस्ट द टॉप ऑफ द प्लम ट्री सैड बिनिया। बिनिया ने कहा, यह पाम ट्री के ऊपर वाली टहनी हिल रही है। गुड बाय की ऐसे दे हियर्ड वॉइसेस, ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। हु सैड गुड बाय आस्क्ड उषा। उषा ने कहा, गुड बाय कौन कह रहा था? नॉट आई सैड बिनिया। नहीं, मैं नहीं, सुरेश ने कहा। नो, मैं नहीं, बिनिया ने कहा। नो, आई हियर्ड समथिंग कॉलिंग सैड उषा, इट्स ओनली द विंड एश्योर्ड बिनिया। उषा ने कहा, कोई आवाज़ नहीं दे रहा, कोई आवाज़ नहीं दे रहा। उषा ने कहा, कोई आवाज़ दे रहा है, लेकिन बिनिया ने कहा, यह केवल हवा है, कोई आवाज़ नहीं दे रहा। उषा लुक्ड बैक एट द रुइंस, द सन हैड कम अप एंड वाज टचिंग द टॉप ऑफ द वॉल। उषा ने पीछे की तरफ, खंडर की तरफ देखा। सूर्य ऊपर की तरफ से आ रहा था और दीवार के ऊपरी हिस्से को टच कर रहा था। कम ऑन सैड सुरेश, आई एम हंग्री। सुरेश ने कहा, जल्दी चलो, मुझे भूख लगी है, जल्दी आ जाओ, मुझे भूख लगी है। वे जल्दी दे हर्रिड अलोंग द पाथ टू द विलेज। वे जल्दी गांव की तरफ बढ़ने लगे इकट्ठे होकर। गुड बाय एंड उषा हियर्ड दैम कॉलिंग, वाज इट जस्ट द विंड। उषा ने अलविदा ये सभी अलविदा जो है गुड बाय की, जो अलविदा की आवाज़ें सुनी, उसको पुकारते हुए आवाज़ें सुन रही थी। यह सिर्फ क्या थी? वाज इट जस्ट द विंड, ये जो केवल हवा थी। रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, द विंड ऑन हॉन्टेड हिल। ये स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। ओके स्टूडेंट्स।